مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے جب بھی میں کسی سیمینار یا کسی بھی فنکشن میں لڑکیوں کو بہت تعداد میں دیکھتی ہوں. میں ملتمس ہوں صدر شعبہ اردو پروفیسر اعجاز محمد شیخ صاحب سے کہ وہ عزت مآب وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان صاحبہ کی خدمت میں ایک گلدستہ پیش کریں. مابعد جدید ادب کے ذہن میں رہیں. کافی سپروائزر گائیڈ ٹیچر اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، وہ شخص مہذب ہے جس کو یہ زبان آئی. اردو زبان و ادب کا دائرہ کافی وسیع ہے اور اردو زبان و ادب کا نہ تھمنے والا کارواں آج بھی روا دوا ہے. اسی تناظر میں آج کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ اردو نے 2 روزہ بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد عمل میں لایا جس کا عنوان مابعد جدید ادب ہے. اس پروگرام کو مزید نکھارنے اور کامیاب بنانے کے لیے وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی پروفیسر نیلوفر خان صاحبہ، سابق صدر شعبہ لسانیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پروفیسر علی رفعت صاحب، سابق ڈین فیکلٹی آف آرٹس کشمیر یونیورسٹی پروفیسر نذیر احمد ملک صاحب، پروفیسر سینٹر فار انڈین لینگویجز JNU پروفیسر خواجہ کرام الدین صاحب کے ساتھ ساتھ صدر شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی پروفیسر اعجاز محمد شیخ صاحب اور اس شعبے کے قابل قدر اساتذہ کرام کے علاوہ شعبہ تعلیم کے اسکالرز اور طلباء بھی شامل رہے. مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے جب بھی میں کسی سیمینار یا کسی بھی فنکشن میں لڑکیوں کو بہت تعداد میں دیکھتی ہوں، کیونکہ یہ ایک ہمیں آئیڈیا دیتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں چینجز آ رہی ہیں اور لڑکیاں بھی آگے آگے بڑھ رہی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو. اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ آف اردو میں کافی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارا اردو کا سبجیکٹ ہے یہ تو کور سبجیکٹ ہے رائٹ فرام اسکول لیول. اور مجھے خوشی ہے کہ یہ آج کا جو سیمینار ہے یہ فردر آپ لوگوں کو ٹریننگ دے گا pertaining to ریسرچ and pertaining to your own subject, and you can contribute to the system. جو آج کا یہ پرٹیکولر ٹاپک ہے پوسٹ ماڈرنزم، مجھے لگتا ہے یہ ایک موومنٹ ہے جس کو کہ شاید ان دس پرٹیکولر سیمینار میں کافی ڈیلیبریشنز ہوں گی. اور مجھے لگتا ہے اس کا مین آبجیکٹو جو ہوگا دیٹس کہ ہم بریک ڈاؤن کرے فرام کنونشنل ٹریڈیشنز تھرو ایکسپیریمنٹیشن اور جو نئی لٹریری ڈیوائسز ہیں، فارمز ہیں یا سٹائلز آف رائٹنگ ہے ایکسیٹرا. حاضرین کرام، مابعد جدیدیت نے ادب اور دیگر شعبہ زندگی سے وابستہ علوم اور ان کے انسلاکات سے متعلق ہر طرح کے ڈسکورس، روایات اور مفروضات کو زیر و زبر کر کے انسانی فہم عامہ، سوچ، فکر اور تخلیقی رویوں کی نئی سمتوں کا اندازہ معاصر ادیبوں کے تخلیقی شعور سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے. 20ویں صدی کی آخری دہائیوں سے لے کر آج تک مابعد جدیدیت کے موضوع پر کافی کچھ لکھا جا چکا ہے. فکری لامحدودیت مابعد جدیدیت کی گویا شناخت ہے، کیونکہ یہ کسی سکہ بند یا نظریاتی کلیہ بندی کو سرے سے تسلیم نہیں کرتی ہے. مابعد جدیدیت کا نظریہ زمانی صداقتوں پر مبنی آئیڈیالوجی پر مبنی ہے. مابعد جدیدیت کو جدیدیت کے غلبے کے خلاف ایک شدید رد عمل سمجھا جاتا ہے، اور اس حقیقت سے تو ہم سب واقف ہیں کہ جدیدیت اس صنعتی دور کی پیداوار تھی جو وضاحت اور اظہار کے روایتی طریقے کی جگہ توجیہ اور سائنس کو ترجیح دینے کی قائل تھی. اور جدیدیت میں عقل اور سائنس کی بنیادی اوصاف نے عظیم داستانوں کو تشکیل دیا، لیکن مابعد جدیدیت نے تخلیق کی آزادی اور معنی پر اٹھائے ہوئے پہرے پر اندرونی اور بیرونی دی ہوئی ادب اگر
किसी भी तफहीम के जाविये से अगर आप अदब को देखना चाहते हैं देखें ज़रूर, मगर इस जमालियाती नुक्ते नज़र को आप जुदा नहीं कर सकते। अगर आप जुदा करेंगे इसका मतलब ये है कि अदब को फ़नून लतीफ़ा के सबसे बाहर कर देंगे। चलिए, ये तमाम बातें मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है हमें एक कारी के तौर पर क्या समझना चाहिए, किस तरह से समझना चाहिए। देखिए, मामला ये है कि जदीदियत हो या माबाद जदीदियत हो, इसकी इस्तिलाहें इतनी पेचीदा हैं जो हमें तो परेशान करती ही करती हैं। हमें से बड़ा असातिज़ा को, तालिब इल्म तो ज़्यादा परेशान होती है। तो परेशान होने की बात नहीं, बहुत आसान तरीका है किसी भी ज़ोलीदा बयान को समझने के लिए। अब इससे पहले कि माबाद जदीद अदब के हवाले से कोई बात हो तो एक दो इस्तिलाहें जहन में आती है। एक है पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निटी या पोस्ट मॉडर्न के जो इस्तिलाहें हैं वो तमाम उलूम में इस्तेमाल की जाती हैं जो समाजी उलूम है, इसकी कोई तखसीस नहीं है। जब हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं तो यह अदबी इस्तिलाह बन जाती है। पोस्ट मॉडर्निज्म का ताल्लुक अदब और कल्चर की तब्दीलियों से। ये माबाद जदीदियत जो है, इसको हम जदीदियत के बगैर नहीं समझ सकते हैं। जदीदियत को हम रोशन ख्याली की तहरीक से अलग नहीं कर सकते। इसलिए रोशन ख्याली की तहरीक, जदीदियत और माबाद जदीदियत एक मुसलसल अमल का नाम। उनका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट से हमारे यहाँ असातिज़ा बैठे हुए हैं, गैर तदरीसी अमला भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा EMMRC से टीम हमारे यहाँ पर जो प्रोग्राम को कवर कर रही थी उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। गांधी भवन के इंतज़ामिया के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रेस और मीडिया से वाबस्ता शख्सियात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर स्टूडेंट्स चैनल से वाबस्ता जुबैर, आशिक और रोशन आरा साहिबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। गांधी भवन से वाबस्ता इंतज़ामिया अमला, स्कॉलर हजरात, तलबा और तालिबात और इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है। शोबा के असातिज़ा कराम, शोबा का गैर तदरीसी अमला और साथ ही साथ जो हमारे रज़ाकार तलबा रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनके ताउन के बगैर ये यहाँ पर इसका इनेकाद होना बहुत मुश्किल था। सर, शोबे उर्दू की जानिब से बैनुल अक़वामी सेमिनार का इनेकाद अमल में लाए। सर, इस बारे में आपसे मज़ीद जानने की कोशिश। जी, देखिए, हमारा जो शोबा है ना, शोबा उर्दू, तो जब पहले ये यूनिवर्सिटी बनी थी एज जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो पहले 3 शोबों में रियाजियात मतलब मैथमेटिक्स, अंग्रेज़ी और ये था। तो इस शोबे के काफ़ी मैंने जो इस्तक़बालिया में भी बयान किया कि इससे काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ वाबस्ता रही हैं, अदब और बाकी जो उन्होंने इल्मी कारनामे अंजाम दिए हैं। और हमारी भी ये कोशिश, मैं बाइज़ सदर शोबा और मेरे जो साथ जो असातिज़ा कराम है और जो मेरा नॉन टीचिंग था, हमारी ये कोशिश थी कि हमारे जो यहाँ मुस्तक़दिमीन थे उनके नक्श कदम पर चल के डिपार्टमेंट में हम इल्मी और अदबी तहकीकी का काम कंटिन्यू कर लें। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी आज का ये जो बैनुल अक़वामी सेमिनार है ये हो रहा है। इसमें खुशी की बात है कि आज हमारी जो वाइस चांसलर मोहतरमा नीलोफर खान साहिबा वो भी तशरीफ़ लाई थी इनागरल सेशन में, और अलीगढ़ से हमारे प्रोफेसर अली रिफात फ़तीह और ख्वाजा इकराम साहब JNU से आए हैं। तो बहुत ही कदावर शख्सियात हैं जहाँ तक उर्दू ज़बान अदब का ताल्लुक़ है, और हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं। अभी इस सेशन के बाद लंच के वक्फे के बाद डेनमार्क से प्रोफेसर नसर मलिक साहब, उनका एक खुसूसी लेक्चर है, और भी हम ये तवक्का करते हैं कि कुछ मंदूबीन मिस्र से भी जुड़ेंगे और अमेरिका से भी एक तवक्का थी हमको, तो आप देखें, लेकिन इनका कंफर्म है कुछ लोग जो बाहर से जुड़ रहे हैं। यही कोशिश है कि हम लोग जो उर्दू डिपार्टमेंट का इल्मी व अदबी कारवान है उसको आगे बढ़ाते रहें, उसी के सिलसिले में एक अदना सी कोशिश है। सर, कि आगे ऐसे प्रोग्राम्स देखने को और मिल सकते हैं डिपार्टमेंट की? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ ऐड कर लूँ कि अगर आपने देखा होगा कि कोविड के बाद जब से मैंने शोबा की सदारत संभाली, हमने ऑनलाइन तवसीह खुतबात का एक सिलसिला शुरू किया था, जिसमें बाहर से ज़्यादातर लोग, सारे लेक्चर्स बाहर से, कश्मीर का अभी तक हमने किसी से नहीं कराया।
वो लेक्चर्स कंटिन्यूसली रहे। लास्ट ईयर 12 ये हमारे तफसीर खुतबात हुए हैं, वो सिलसिला अभी चल रहा है। इंशाल्लाह उसको काफ़ी सराहा लोगों ने। उसी के साथ लास्ट ईयर हम लोगों ने एक और सेमिनार किया था, वन डे सेमिनार किया था। एक महफिल की थी जिसमें हमने एक बुक रिलीज़ फंक्शन की थी। शायद आप आए थे उसमें, जो हमारा पहली मरतबा शोबे उर्दू की तारीख में जिसको हम एलुमनी मीट कहेंगे, उसमें मिलन के नाम से आपने कवर भी किया था, वो भी हमने किया था रास्टर। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला इस साल भी हम जारी व सारी रखेंगे। शुक्रिया। शोबे उर्दू की जानिब से आज 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी सेमिनार का इनेकाद अमल मिला है। सर, आप कैसे इस प्रोग्राम को देख? देखिए, इस तरह की इल्मी और अदबी सरगर्मियाँ ज़ाहिर सी बात है किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में होती रहती हैं। उसी सिलसिले की ये भी एक कड़ी थी। मैं ये बताता चलूँ कि ये नहायत ही दकीक मौजू था। मैं सदर शोबा उर्दू प्रोफेसर एजाज मोहम्मद शेख साहब को नहायत ही मशकूर ममनून हूँ कि जब से उन्होंने शोबे की क़यादत और सरबराही संभाली है, तब से उन्होंने इस तरह की तकरीबात का अहतमाम वक्तन किया है और ये बावर कराने की कोशिश की है कि शोबा उर्दू दूसरे शोबाजात के मुकाबले में किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। आज ज़ाहिर सी बात है कि बैरून रियासत से कुछ माहिरीन को भी मदऊ किया गया था, जिनमें प्रोफेसर हाजा इकराम थे, प्रोफेसर अली रिफात फतही थे, उनके अलावा वादी कश्मीर से प्रोफेसर नज़ीर अहमद मलिक थे और उनसे पहले रईस जामिया प्रोफेसर नीलूफर खान साहिबा भी तशरीफ़ फरमा हुई और उन्होंने जो है यकीनन जो है इस मौजू के हवाले से अपनी जो है वो आराम का खुलकर इजहार किया, क्योंकि ये मौजू ऐसा है कि इसका असर हाज़िर के साथ ताल्लुक़ है। ऐसे मौजू के ऊपर तकरीब का होना यकीनन ये वक्त की ज़रूरत थी, ये यकीनन जो है आज पूरी हो रही है। और मैं इस चैनल के ज़रिए सुनने वालों को भी एक बात कहता चलूँ कि ये हमारा लाइव स्ट्रीम भी चल रहा है, आप इसके तवस्सुल से इस दकीक मौजू को जो है हमारे एक्सपर्ट के ज़बानी सुन सकते हैं। और ये यकीनन जो है मेरे ख्याल से माबाद जदीद अदब के हवाले से ये पहली काविश है बिलखुसूस शोबा उर्दू के अंदर। और इस काविश को जो है ना हम सिर्फ सराहते हैं, बल्कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि जब अहले ज़ौक़ कल यहाँ से आखिरी नशिस्त में अपनी तमाम तर चीज़ें पेश करने के बावजूद जाएंगे तो तशनगी का एहसास बाकी रहेगा। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि हमारी कोशिश यही रहती है कि इस तरह की तकरीबात का एहतमाम किया जाए ताकि जो अदबी हलकों में जो है वो शोबे को भी पजीराई हासिल हो और वो लोग जो इल्म अदब से जुड़े हुए उनको भी मौका मिले। तो नाज़रीन, ये था आज के प्रोग्राम के हवाले से। दीजिए मुझे अपनी मेज़बान ज़बरीन आशी के साथ कैमरा पर्सन रात रोशनारों को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।